response, transient, that is which exists only for a small period of time, that is negligible period of time, and steady state response, that is time at t equal to infinity. You know, that is why it is known as steady state response. Even in mathematics, you have studied these two responses in the name of complementary function and particular integral, but at that point of time, you must not be able to relate it with the control systems. And how practical the implication of these topics are, that is very invaluable for control point of view, that you have to remember. So here transient response and steady state response is symbolically written CT equal to CTR plus CSS. CTR is transient response, that is also known as natural response of any control system, and steady state response is the response which exists at t equal to infinity. And that steady state response is also known as particular integral in mathematical parlance. And then typical test signal, already we have studied ramp signal, parabolic signal. Parabola already how y equal to k kx square, y equal to kx square is the parabolic signal. So here rt equal to at square by 2 we take, because when you take Laplace transform of at square by 2, so it simply becomes 1 by sq. So 2 gets cancelled. That is why it is put in this form. So y equal to kx square. That is equation of parabola. Ramp signal, that is also very easy to understand. Rt equal to at, that is ramp signal. If it is unit ramp signal, then a will be equal to unity. Then a will be equal to unity. Impulse signal, already I have discussed in the class. Mathematical implication of impulse signal, delta t equal to infinity, t equal to 0, delta t equal to 0 when t is not equal to 0, and if you see continuous domain definition, then you can write it integration of minus infinity to plus infinity delta t dt equal to unity. Already we have discussed all these things in the class. And these are RT, uh, step function. This is ramp function, this is parabolic signal, and this is impulse function where delta tends to 0. Now, time response of first order system. I have already told you, when you come across, RC circuit or RL circuit, that culminates in the form of first order system. First order system transfer function will be in this form, 1 by tau s plus 1 or k by tau s plus 1. Now, unit step response of first order system. Now, you see here from this block diagram, you see Cs upon Rs equal to 1 by tau s plus 1. Now, if you take it as unit step response, then RS का value क्या होगा अग्रिम? If you take unit step response, what will be the value of RS? क्योंकि RT equal to unity है, RT equal to UT है, हाँ 1 by S हो जाएगा, तो समझ ही रहे हो. तो CS क्या होगा? 1 by S tau S plus 1 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर? तो इसी को तुम पार्शियल फ्रैक्शन करके ये सब करते जाना, मैं जो बोल रहा हूँ, है ना. बल्कि चाहो तो आज मैं क्लास असाइनमेंट दे दूंगा उसमें, और इस सबको अपने से करके समझना, ठीक है. देन यू सी dc by dt at t equal to 0 जो है 1 by t हो जाता है. यानी इफ यू टेक टेंजेंट at t equal to 0 along the curve, then dt dc by dt का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना अग्रिम? इट इज टेंजेंट at t equal to 0, यही होता है ना. तो टेंजेंट यहां पर अगर ड्रॉ करोगे तो टेन थीटा क्या होगा? हाइट बाय बेस के परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 1 बाय टी हो जाएगा. तो यानी वन टाइम कांस्टेंट, देख रहे हो. यानी इफ यू टेक टेंजेंट at t equal to 0 along the curve, है ना, तो then along the response curve, then you can get this kind of line. This will correspond to time t when proceeded upward, है ना. So that will meet the tangent. ये इसका implication है. उसी रंग से after one time constant, if you draw the tangent, then it will go like that. After two time constant, if you draw tangent, it will. तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल इम्प्ली लिखा हुआ है, इसको समझ जाना थोड़ा सा. ऑलरेडी मैंने बहुत बार कर चुका है ये सब. It is just like charging and discharging of capacitor. You see, unit step response is the steady state response, and in one time constant, it will achieve 63% of the response. That is why it is 0.632. ये दिख रहा है कि और बड़ा करें इसको अग्रिम? ये देखो है ना 0.632, यानी वन टाइम कांस्टेंट में 63
63% ऑफ यूनिटी को ये अचीव कर लेता है ना, और 4-5 टाइम कांस्टेंट में यूनिटी को ये अचीव कर लेता है। यही आरसी सर्किट में भी होता है। तुम जानते हो कि वन टाइम कांस्टेंट में 63% कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो जाता है ना, because we are dealing with first order system, so you can correlate it with the RC circuit only, or RL circuit also you can take. When you take RL series circuit, then growth and decay of current takes place. What does it happen? Growth and decay of current. I think you must have all these ideas from 10+2 physics. So basically all things are interrelated to each other, symbiotically related to each other. uh, Now the second one is unit step response of first order system. Earlier we have taken unit step response. Now you take unit ramp response. When you take unit ramp as the input, then RT will be T. RT will be equal to T you can take, है ना? तो सी एस इक्वल टू यहीं से देखो, सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा अग्रिम, यहाँ पर 1/s² हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s² होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो उसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, सी एस इक्वल टू 1/s², टॉस प्लस 1। और ये सब मैथमेटिक्स में तुम बहुत पढ़े होगे 10+2 में कि कैसे करते हैं। अगर 1/s² वाला टर्म रहे तो क्या लिखते हैं, k1 1/s² प्लस k1 2/s प्लस k3 टॉस प्लस 1, है ना, इसको अलग कर देते हैं। वेयर अब यहाँ राइट हैंड साइड में हम बताएं, k11 क्या हो जाएगा, s² इंटू एफ एस, s² इंटू एफ एस, s इक्वल टू 0, ये पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। k12 क्या होगा, d/ds s² एफ एस, s इक्वल टू 0 पुट करो तो माइनस टॉ आ रहा है। k3 विल बी इक्वल टू टॉस प्लस 1। अब टॉस प्लस 1 से एफ एस सी एस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉस प्लस 1। अच्छा यहाँ एफ एस मैंने दे दिया, लेकिन एफ एस की जगह क्या होगा अग्रिम, एफ ऑफ एस की जगह क्या होगा, कर्सर को देखो, सुमित दास, आर यू प्रेजेंट? ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार, यस सर। क्या होगा ये एफ ऑफ एस जो है, ये एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये जो एफ ऑफ एस है, दिख रहा है कर्सर की नहीं? यस सर। एफ एस इज नथिंग बट सी एस, सी एस की जगह एफ एस लिखा गया है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ ये सी एस है बेसिकली, एफ एस जहां भी एफ एस है वो सी एस है, तो इसको करोगे तो माइनस टॉ आ जाएगा। फिर k3 क्या होगा, सीधा टॉ एस प्लस 1 इंटू सी ऑफ एस, एस इक्वल टू -1/टॉ, क्योंकि यहाँ से टॉ एस प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो एस इक्वल टू -1/टॉ हो जाएगा, और ये तुम्हारा टॉ स्क्वायर आ गया। अब सभी का वैल्यू जब रखोगे तो सी एस इक्वल टू 1/s² माइनस टॉ एस प्लस टॉ स्क्वायर बाय टॉ एस प्लस 1। तो आज सभी तुम लोग ऐसा करो, ये पहले करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं सभी को, ये करके देखो कि ये आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद दूसरा प्रूफ करेंगे। इज इट ओके अग्रिम? यस सर। हाँ तो ये पहला वाला प्रूफ करो, और जैसे ही हो जाए फिर हम यहाँ पर कर देंगे। इस पर प्रूफ किया हुआ है तो थोड़ा तुम करके अपने से देखो कि ये आ रहा है कि नहीं। तो ये करके देखो पहले, ये 2 मिनट लगेगा तुमको, ठीक है? आई गेटिंग माय पॉइंट अग्रिम? यस सर। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको तुमको करता हूं और इसको 2 मिनट में कर
किसी से हो गया? हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? किसी एक से कोई एक बोलो हो गया तो। अग्रिम सर ट्राई कर रहा हूँ मैं तो। हैं? कर ही रहे हो? उदित पाठक बना रहे हो? यश शर्मा बना रहे हो? बना? अच्छा, ये हो गया ना सेम चीज? ठीक है, तो जिससे नहीं बना वो घर पर जाके कर लेना। अब ये बनाओ, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स करो। दिक्कत हो रहा है तो पूछो, ठीक है? हाँ, ये 3 मिनट टाइम इसमें भी दे रहा हूं तुमको। 3 मिनट टाइम इज गिवन टू यू।
हाँ पूर्वी, आर यू प्रेजेंट? यस सर। हो गया ये? सर ट्राई कर रही हूँ अभी। हाँ ट्राई किया तो क्या हुआ है, उसी ढंग से एफएस जो है सीएस है करके देखो उसको। अग्रिम हुआ तुमसे? सर ट्राई कर रहा हूँ। दिक्कत हो रहा है तो पूछो। यस शर्मा, बना नहीं अभी तक? सुमित बन गया कि नहीं? इज्जोत यस सर। बन गया ना? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद ये देखो एरर निकालना है तो आरटी माइनस सीटी होता है, और आरटी माइनस सीटी करोगे तो ये हो जा रहा है। एंड व्हेन यू पुट टी इक्वल टू इंफिनिटी यू विल गेट स्टेडी स्टेट एरर। ई इंफिनिटी मींस स्टेडी स्टेट एरर इज tau. Unlike first order system, you see first order system में there is no steady state error, है ना? देख रहे हो ना उसका प्लॉट जो है, बट हियर स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू tau. तो ये सब इसको कर लेना है। देन यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, है ना? यूनिट इंपल्स में क्या हो जाएगा? इंपल्स का लैप्लास क्या होता है अग्रिम? यूनिट इंपल्स का लैप्लास क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर बताए थे ना कि यूनिट इंपल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिटी होता है। पहला क्लास में यही सब बताए थे लैप्लास में। हाँ सर। तो सी एस इक्वल टू 1/tau s प्लस है तो सीधे हो गया ई 1/tau, tau कॉमन ले लोगे तो 1/tau e टू द पावर माइनस t/tau, है ना? 1/s प्लस a का e टू द माइनस as नहीं होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म? तो किए थे क्लास में, तो वो सब प्रैक्टिस कर लो, ये सब जल्दी से कैसे लिखा जा सकता है। और इसका ये हो गया एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया, e टू द माइनस x को जैसे प्लॉट करते हो वही प्लॉट है ये, है ना? t इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड यूनिटी हो गया, यूनिटी मल्टीप्लाइड बाय 1/tau हो जाएगा, एट t इक्वल टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड इज 0। ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी ऐसे ही होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर। देखो ये समराइज कर दिए, यूनिट रैंप में ये होता है, यूनिट स्टेप में ये होता है, यूनिट इंपल्स में ये होता है, यू नो। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व these three expressions meticulously, you can find the relationship between them. You can see that unit step is differentiation of unit ramp signal and unit impulse is differentiation of unit step signal, or vice versa. You can say that unit step is integration of unit impulse signal and unit ramp is integration of unit step signal response, है ना?
तो रिस्पॉन्स में रिलेशनशिप है कि आइदर इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है ना, इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ये तुम्हारा एक एग्जांपल है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, और ये तुम्हारा देखने में कॉम्प्लेक्स है, ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम्स है, और इसमें तुम्हारा थोड़ा सा जो है पोटेंशियोमीटर का यूज हुआ है ना। तो चाहो तो इंटरेस्टिंग है, इसको भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सीरीज आरएलसी सर्किट, है ना। सीरीज आरएलसी सर्किट में इफ यू टेक voltage across capacitance as the output and the supply voltage as the input voltage, and if you find out a transfer function will be equal to output voltage Laplace transform of output voltage divided by Laplace transform of input voltage. And then I have already discussed the transfer function of RLC series circuit, and it comes out to be of second order form. याद होगा तुमको, ऊपर में तुम्हारा शायद 1/LC आ गया था, नीचे में s स्क्वायर प्लस, है ना, 2SR/LS प्लस 1/LC ऐसे करके कुछ आ जाता है ना। तो 1/LC को हमने ओमेगा n स्क्वायर मान लेने से ये वाला फॉर्मेट आ जाता है। देखो ये वाला ओमेगा n में तुम्हारा क्या था, 1/LC था, याद होगा तुमको। और जब ट्रांसफर फंक्शन RLC का निकाले थे तो s स्क्वायर, है ना, और प्लस R/L इंटू एस था, ऐसे ही कुछ था, R/L इंटू एस था, है ना, प्लस 1/LC यहाँ पर था ओमेगा n स्क्वायर। ऊपर में भी 1/LC, तो ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 1/LC लिख सकते हो, और जीटा ओमेगा n को कंपैरिजन करके मतलब एनीवे तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। we have taken mechanical system also, a spring mass dashpot system. In that case also the transfer function came out to be of the same form, that was second order system, है ना। याद है ना, डैम्पिंग स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम में भी इसी तरह का आया था फॉर्म, है ना। तो तुम उसको इस फॉर्म में याद रख लो। ये जो था ना प्रोटोटाइप सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या है बताओ। सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये याद रखना एक्सप्रेशन, ये सब भावा समय पूछते हैं लोग, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, k/τs+1, CS/RS इक्वल टू k/τs+1। और ये है तुम्हारा ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या है, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, या अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नाम इस सब का याद रख लेना। ओमेगा एन को कहीं लिखे भी होंगे हम, है ना, लास्ट में होगा। ये देखो ओमेगा एन क्या है, पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ ऊपर में, है ना। और जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, जीटा को क्या बोलते हैं, ये सब टर्म याद रखना। और ये इस सिस्टम के लिए ये निकाला है, अलग अलग सिस्टम के लिए जीटा ये सब कंपैरिजन करके निकाल सकते हो। जैसे आरएलसी सर्किट रहता है तो जीटा ओमेगा एन निकाल सकते हो तुम, तो क्लास में बता दिए हैं, घर पर जाके इसका जीटा ओमेगा एन निकालना तुम आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए और मैकेनिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। ये सब जो बता रहे हैं लिख लो कि सर है, ये असाइनमेंट में दे रहा हूं तुमको, जैसे ही क्लास खुलेगा ये सब देखेंगे। और ये सब चीज एग्जाम में भी तुमको कभी भी आ सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक मिनट ध्यान दो, ही नहीं कि क्लास में सो गए, कहीं चले गए, सर तो मैंने कुछ कुछ बोल रहे हैं, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना, सबका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब है, समझ रहे हो ना। तो ये तुमको ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो ब्रैकेटेड है, ये तो सब चीज समझ में आ गया। ओमेगा एन को बोलते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन को बोलते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, है ना। अभी तुम इतना ही याद रखो। और इसको देखो, अगर हम डिनोमिनेटर को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दो भाग में बांट के, देख रहे हो कि नहीं यहाँ पर। और इसको लिख सकते हैं तो अंडर डैम्प्ड केस यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है ना। अंडर डैम्प्ड में जीटा क्या होता है, 0 से यूनिटी के बीच। ये तुम फिजिक्स सब में भी पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, एनएस में है ना। तो हाँ, क्योंकि मेरा बेटा भी यहीं से पढ़ता था तो उसको ये सब था, ये सब चीज। तो सी एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, है ना, ये चीज ठीक है ना। अब ये क्या है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, क्या है, तो यूनिट स्टेप में 1/s नहीं आ जाएगा, सी एस, जैसे देखो CS/RS ये है ना। तो यूनिट स्टेप में क्या हो, ये ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़ो या कर्सर के पास, क्लियर है ना। तो ये हो गया ओमेगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई, ये तो है ही, है ना, ये तो है ही, खाली 1/s जुड़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
अब इसको कैसे करना है, तो k1 बाय एस प्लस k2 एस प्लस k3 बाय ऐसे करके, मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन सब में भी ये सब यूज होता है फॉर्मेट। अब इसमें तुम क्या करोगे, इसका तुम जो है इस तरह से, इसमें राइट वाला छोड़ देना, वो व्हाट लगा हुआ है मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन वो छोड़ देना, ये जो किया हुआ है वही करना तुम, है ना। k1 बाय एस प्लस k2, और यहाँ से k1 निकल जाएगा, k2 निकल जाएगा। ये कैसे निकला, तो एलसीएम लेके समझ रहे हो ना, कंपैरिजन कर दोगे, ऊपर और नीचे कर सकते हो ना तुम। नीचे तो सेम आएगा, लेकिन ऊपर में यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर है, यहाँ पर बहुत सारा टर्म आएगा, कंपैरिजन कर दोगे और उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा k1 1, k2 -1 और k3 -2 जीटा ओमेगा एन। तो तुमको मैं ये निकालो, अभी तुमको 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, k1 k2 k3 निकालो, उसके बाद ये थोड़ा समझाता हूँ। इज इट ओके? ये करो करो, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो पूछो, कुछ नहीं है इसमें। एलसीएम लेके और ऊपर में खाली कंपैरिजन कर, नीचे तो वही आ जाएगा, कंपैरिजन करके ये आ रहा है कि नहीं ये थोड़ा देखना है, ठीक है, करो इसको। ओके। बनाइए किसी से।
अग्रिम यस सर। K1 K2 K3 आ रहा है ये? यस सर। और किसे आया, नाम बता के बताओ। ठीक है, अब वो आ गया तो ये वाला चीज स्टेप समझ में आ रहा है ना? K1 K2 K3 रखोगे तो ये वाला कर्सर देख रहे हो ना, ये स्टेप आ गया कि नहीं? अच्छा, ये लिखते जाओ तुम, है ना? जो स्टेप आ रहा है ये प्रूफ हो जाएगा अभी ऑनलाइन। और ये स्टेप करके देखो कहां तक समझ रहे हो तुम। नहीं समझ रहे हो तो बताओ फिर। थोड़ा मैनिपुलेशन किया है, पूरा समझ गए? लास्ट वाला जो सीटी आया यहां तक समझ गए? समझाना पड़ेगा फिर सभी को। जहां कर्सर जहां है, यहां तक आ गया ना, ये कर्सर तक, इस स्टेप तक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया है कि ओमेगा डी इक्वल टू होता है ओमेगा एन रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। क्या होता है ये डिफाइन करते हैं। ओमेगा डी भी याद रखना, ओमेगा डी को बोलते हैं डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? लिख लो, ओमेगा डी इक्वल टू डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या है? अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दोनों में अंतर क्या है? ओमेगा डी इज डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन इज अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो रिलेशनशिप ये होता है। ओमेगा डी के टर्म्स में करेंगे, क्यों करते हैं इसका विशेष पर्पस है ना? जब तुम करोगे प्रूफ तो एक एक चीज समझ में आएगा बाद में। तो हम क्या किए कि यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर था, है ना? और ये तुम्हारा एस प्लस जीटा, ये जो हमने किया है 1/s तो ठीक है, और इसको मैथमेटिक्स में मैनिपुलेट करके एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर आप प्लस जब करोगे तो ओमेगा डी स्क्वायर की जगह तुम लिख सकते हो ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर आया होगा, है ना? उसको एक ही बार में हम लिख दिए ओमेगा डी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब तुम्हारा ये 1/s माइनस, अब ये देखो s प्लस टू जीटा ओमेगा एन को हमने क्या लिख दिया? s प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? अब माइनस हो गया मल्टीप्लाई करके, है ना? और ये हो गया s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, है ना? अब देखो थर्ड स्टेप में s प्लस जीटा ओमेगा एन, ये तो सेकेंड वाला टर्म वही है, ठीक है। थर्ड में फिर से थोड़ा सा ये किए है, क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेशन। इसमें क्या किया है? जी रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर से तुम डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में करोगे तो ओमेगा एन रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर स्क्वायर क्या ओमेगा टी हो जाएगा, डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना? तो अब ये स्टेप आ गया यहां तक, है ना? और क्लियर है ना यहां तक? और क्लास में एक बताए थे कि, है ना, फंक्शन ऑफ जैसे e टू द पावर माइनस अल्फा टी फंक्शन ऑफ टी, e टू द माइनस अल्फा टी फंक्शन ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एफ एस प्लस अल्फा। याद होगा क्लास में बताए थे। तो यहां पर क्या है? एस प्लस अल्फा के रूप में है कि नहीं? यहां पर देखो, यहां भी है, यहां भी है ना? और एक में तुमको ओमेगा डी है न्यूमरेटर में, दूसरा में एस प्लस जीटा ओमेगा एन है। जहां एस प्लस जीटा ओमेगा एन न्यूमरेटर में है, इसका मतलब ये कॉस ओमेगा टी से रिलेटेड होगा। तो इसको हमने लिख दिया e टू दी माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी। क्यों? क्योंकि यहाँ ओमेगा एन की जगह पर ओमेगा डी है ना? कॉस कॉस ओमेगा टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ना? और एफ एस प्लस अल्फा लिखोगे तो, है ना, e टू दी माइनस अल्फा टी, अल्फा इक्वल टू जीटा ओमेगा एन टी। आ गया ना फॉर्मूला पर? इसको प्रैक्टिस कर लो, है ना? एग्जाम आएगा तो ये सब चीज। और यहाँ पर ये हो गया e टू दी माइनस जीटा ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसमें कॉमन ले लोगे e टू दी माइनस जीटा ओमेगा एन बाय रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अल्टरनेट ईयर आता ही है या कभी कभी हर एक बार आ जाता है ना? फाइंड द स्टेप रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। आ गया कि नहीं ये फॉर्मूला? ये थोड़ा ठीक से पढ़ लेना। और इसमें वेयर फाई के टू टर्म्स इसको दे दिया है ना? इसको रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी जो है ना, रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को साइन फाई मान लिया, है ना? तो जीटा इक्वल टू कॉस फाई नहीं हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला पर आ गया। ये तुम्हारा एक जो इक्वेशन 8 है, ये तुमको फाइनल इक्वेशन है ना?
where phi is equal to tan inverse root minus zeta square by zeta. sin inverse root minus zeta square भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि sin theta equal to perpendicular hypotenuse होता है, perpendicular by क्या होता है, hypotenuse. ये बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा इक्वल टू, तो उससे ये आ गया. इसको cos इनवर्स जीटा भी लिख सकते हो. ये तो समझ रहे हो ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. हाँ, तो यहां तक ही आज रहने दो, और उसके बाद एरर सिग्नल सब निकाल के, और घर पर तुम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए भी कर लेना, क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए भी कर लेना, है ना. इसको पूरा कर लेना घर पर, ठीक है. पॉइंट चाहो तो तुम अपने से घर पर ये सब भी पढ़ लेना, जिससे कि नेक्स्ट में मुझे दिक्कत ना हो, है ना. बहुत लड़के अपने से भी देखो, तुमको मिल गया है ना, तो इसको प्रूफ करो, सब चीज किया हुआ है ना. बल्कि पूछो हमसे, सर ये कैसे हुआ है ना, ये सब चीज प्रूफ नहीं आ रहा है, तो हम तुमको बता देंगे कुछ यहाँ से, है ना. या कुछ लड़के ही कर लेंगे, इसमें कुछ है थोड़े, समझ रहे हो ना. तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास है मेरा. तुम्हारा जो है अग्रिम एक क्लास मंडे को नहीं ले पाए थे, तो कल कभी खाली हो तुम लोग? हाँ सर, कल सुबह के टाइम पे फ्री है. कितने बजे? सर 12 o'clock अराउंड. तो 12 फिक्स कर दो, ठीक है. 11 बजे फिक्स नहीं, 11 बजे नहीं हो खाली? सर 11 बजे भी फ्री है. हाँ, तो 11 रहने दो ना, 11 से 12, ठीक है. ठीक है सर. तो सभी को इन्फॉर्म कर दो, 11 बजे हम जुड़ेंगे. तुम मुझे भी एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना सुबह में, मैंने कल एकदम, हम अगर भूल जाए तो, ठीक है. ओके सर. इसको नोट डाउन कर लो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सभी को आना है, और कल मैं इसको लेके रीशेड्यूल कर दूंगा, 27 वाला जो है, ठीक है. ओके सर. नाउ अटेंडेंस प्लीज. औद्विक नाथ मोहर. प्रेजेंट सर. दिव्या दर्शन. अर्नव सिंह. प्रेजेंट सर. सर दिव्या दर्शन प्रेजेंट. हाँ ठीक है. एक जोत तो है. ऋषभ भारद्वाज. प्रेजेंट सर. अक्षत. यस सर. हाँ, ऋषभ. प्रेजेंट सर. सुमित तो दिखा था. हर्ष सिंह. प्रेजेंट सर. मयंक. प्रेजेंट सर. अरुण. यस सर. सर मेरी पिछली भी एब्सेंट Yes, लगी हुई है, मैं प्रेजेंट था. पहले आज का होने दो पूरा. ओके सर. केशव. यस सर. यस सर. नवनीत. प्रेजेंट सर. गरिमा. प्रेजेंट सर. कौन बोल रहा था? सर मयंक. क्या प्रॉब्लम है मयंक? सर पिछली एब्सेंट लगी हुई है, मैं प्रेजेंट था. ऐसा नहीं होता है, झूठ मत बोलो, समझ रहे हो ना. सर झूठ ही बोल रहा सर, आप साथ में ही था. 25 तारीख को क्लास लिए थे ना, ये वाला क्लास रिशेड्यूल करके 25 तारीख को लिए थे, तो सबने बोला था आपका नेटवर्क इशू था उस दिन, आप ये किसी का लगाया ही नहीं, किसी जी का सर. सेव हुआ है. यस सर. सभी का प्रेजेंट थे सब क्या? यस सर. ये जो तो आज सैटरडे को क्लास हुआ था. जी हाँ सर, आपका ही नेटवर्क इशू था सर. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो ये मैं आज का कर दिया, मैंने कर दिया उस दिन, है ना, ठीक है. तो ये जो तुम्हारा है, अब नया वाले बच्चे हैं. और सर एक चीज हाँ. और है कि जो आप कल क्लास लेने के लिए बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे हमारा 6 सेमेस्टर का क्लास है, तो कल भी हम नहीं ले पाएंगे. ओ, तुम्हारा उस समय क्लास है? ये सर कल तो हमारा थर्सडे को पूरा पैक रहता है सर. कोई हाँ, तो बहुत 9 पूरा सुनो 9 to 10 बैठेंगे, आधा घंटा ही बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे. 9 बजे रखना है, 9 बजे. सर वो तो आप 4th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग रख लीजिए, मैं बस बता रहा था क्योंकि वो लोग जब फ्री हैं उस टाइम पे रखिए, हम लोग तो नहीं समझे? अरे एक तुम भी प्रेजेंट रहो ना. 9 to 10 अग्रिम, 9 to 10 रख ले.
सर फ्राइडे रख लो सर क्लास। फ्राइडे को तो ऑलरेडी मेरा क्लास है कि नहीं तुम्हारे में? फ्राइडे को मेरा क्लास नहीं है तुम्हारे में? सर थर्सडे हमारा 9 से 10 भी फ्री नहीं है, 9 बजे से इलेक्टिव सब्जेक्ट का क्लास है। अच्छा अच्छा, फ्राइडे को देखो, फ्राइडे को तो तुम्हारा क्लास ऑलरेडी है। अच्छा अभी खाली हो तुम इसके बाद? नहीं नहीं सर, अब तो कंटिन्यूसली क्लासेस है। अच्छा क्लास है, तो फ्राइडे को तो तुम्हारा ऑलरेडी क्लास है, तो 2 से 3 बजे क्लास है तुम्हारा कि नहीं सर क्लासेस है 2 से 3 है? अच्छा सुनो, थर्सडे को हम पूरे खाली है, देख रहे हो कि नहीं? थर्सडे को कभी बोल दो तो हम ले लेंगे। हमको अभी बता दो तो थोड़ा सा सोच के तुम लोग, है ना, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, तब तक तुम लोग थोड़ा सा मैसेज दे के आपस में वार्तालाप कर लो। थर्सडे को प्रयास करना फर्स्ट हाफ में ही, जिससे कि कभी भी प्रयास करना, अदरवाइज जब खाली है बता देना हमको, ठीक है? नाउ अटेंडेंस प्लीज। पूर्वी, Present, sir. प्रियांशु, आर्यन, हर्ष, प्रेजेंट सर। सोनाक्षी, सोनाक्षी प्रेजेंट सर। सोनाक्षी, पिछले दिन हम जो थे ना कहीं चले गए थे, तो उसका थोड़ा लैब का भी हम लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट जुड़ के अटेंडेंस बना लेंगे, नया शेड्यूल करके, ठीक है? ओके सर। तो इसको तुम लोग डिसाइड करके कल कभी भी आधा घंटा 15 मिनट के लिए हम लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है? हमको बता देना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करके, ठीक है? लैब के लिए भी। ओके सर। यानी तो शनिवार को फिर बैठना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस सर। ओके सर, ओके। ध्रुव सिंधु, प्रेजेंट सर। रवि कुशवाहा, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन। प्रेजेंट सर। हाँ धीरे से बोलो, ऐसे उगता के क्यों बोल रहे हो? हाँ, करण यादव, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। हर्ष पौडवाल। मधुर भाषा बोलने में क्या खराबी जाता है? एकदम से लगता है कि हर्ष पौडवाल इज एब्सेंट। प्रेजेंट है सर। अच्छा प्रेजेंट है। कानव सिंह, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद, प्रेजेंट सर। दीपक, प्रेजेंट सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। सर ऋग्वेद। लास्ट क्लास की एब्सेंट लगी हुई है क्या रोल नंबर है? सर, 4003। नहीं आया होगे ना, ऐसा सर थोड़ी आया होता था। है। चलो, मोहम्मद साहिल, यस सर। अभिनव, प्रेजेंट सर। समर्थ, प्रेजेंट सर। आसिका, प्रेजेंट सर। खुशी, प्रेजेंट उदित सर। पाठक, प्रेजेंट सर। आर्यन सोलंकी, प्रेजेंट सर। अनीश वर्मा, प्रेजेंट सर। अनिक, प्रेजेंट सर। सत्यम, प्रेजेंट सर। आयुष, अनिर्बान दत्ता, प्रेजेंट सर। आदित्य सेन, प्रेजेंट सर सर। आयुष प्रेजेंट। सर आयुष प्रेजेंट। औदृशकर, प्रेजेंट सर। आस्था, प्रेजेंट सर। विशाल, अंजलि, प्रेजेंट सर। तनिष्क, प्रेजेंट सर। सोनिया, प्रेजेंट सर। विशाल, प्रेजेंट सर। मानसो, प्रेजेंट सर। सुमित आनंद, सुमित आनंद, सर प्रेजेंट। वंश माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। प्रत्यूष, प्रेजेंट सर। निखिल, प्रेजेंट सर। अनन्या, प्रेजेंट सर। कुंदन, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। अरुण कुमार, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। यीशु, मोहम्मद निसार, प्रेजेंट सर। ऋषभ जैन, प्रेजेंट सर। नीतीश राणा, यस सर। गौरव चौहान, प्रेजेंट सर। सुशांत प्रकाश, प्रेजेंट सर। शिवम रजक, अभिनव, प्रेजेंट सर। अभिनव गौतम, प्रेजेंट सर। आर्यन शेखर, प्रेजेंट सर। भव्य कुमार, प्रेजेंट सर। यश शर्मा, भक्त प्रेजेंट नारायण, सर। प्रथम,
Present, sir. Pratham Malik. Animesh, Present, sir. Kirit, Present, sir. Sar, Pankaj, Present, sir. Pankaj. Dhruv Kumar. Present, sir. Tushar is absent Sir. today.